नंबर पता ना है मेरे को। देव मजामान भाई। हाँ सर। चलो रीडेबल है भाई सबको, फॉन्ट साइज बराबर। यस सर। चलो केस स्टडीज वुड बी मोर ऑफ लाइक कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। कोई एक थियरी के रिलेवेंस तुमको दिया होगा एंड फिर करस्पॉन्डिंग तुमको 3 से 4 एमसीक्यूज पूछेंगे, यूजुअली 3 to 4 मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज। 5 एमसीक्यूज होते तो कई बार ऑप्शंस देते, अटेम्प्ट एनी 4। पहले इनिशियली जो आते थे काफी इजी थे, जो फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च हुआ था केस स्टडीज, तो काफी कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। डायरेक्टली आपको केस स्टडीज के लिए वहीं से अटेम्प्ट करना था, बट नाउ ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता गया, थर्ड ईयर में आ गया इसलिए। तो अभी सिर्फ एक टॉपिक दिया होता है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, और फिर वो टॉपिक के रिलेटेड फॉर्मूलाज तुमको आने चाहिए टेक्स्ट बुक के। सो इट इज जस्ट लाइक सॉल्विंग 3-4 न्यूमेरिकल्स। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टूडेंट फॉरगॉट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। इंपॉर्टेंट चीज है, किसका फॉर्मूला बना रहे हैं अपने, स्पीड ऑफ साउंड, बट ही नोज देयर वर speed, pressure, density in the formula. He then started using the dimensional analysis method. अभी ये देखो ये फॉर्मूला उसने बनाया, which says कि velocity is equals to some constant k into T, which is pressure here, raised to x, and density raised to y. Okay. The question is k is dimensionless constant. What should be the value of x? And then we have to find the value of y. So here we will apply the third application of dimensional formula. क्या करेंगे? We will find the dimensional formula of LHS and RHS. On the LHS side, जब भी dimensional formula लिखेंगे, we will write it in the box. अगर box नहीं है, which means we are just writing the values. Box है तो we are writing the dimensions. बोलो स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? अंश, देव, dimensions of speed, the velocity should be m0, L1, yes, t minus 1. आर्य RHS पकड़ो. For RHS we have pressure raised to x and density raised to y. Pressure, dimensional formula of pressure. Arya, what is the dimensional formula of pressure? It is m1 L minus 1 T minus 2 t minus 2 raised to x. Density m1 L minus 3 raised to y. Okay, so now we'll get m raised to क्या हो जाएगा? It would be x plus y. Similarly, L raised to it will become minus x minus 3y. For t, it would just be t raised to minus 2x. Comparing the powers of MLT in LHS and RHS, we can create 3 equations. First equation says x plus y must be equals to 0. Second equation says minus x minus 3y must be equals to 1, comparing the powers of L. Similarly, comparing the powers of t, we'll get minus 2x is equals to minus 1. सबसे पहले कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? x हाफ मिलेगा. x मिल जाएगा, x is equals to 1/2. Once we find the value of x, तो चलो पहले तो अपना फर्स्ट MCQ का आंसर आ गया. Value of x is 1/2. Option B is correct. Now looking for y, we can substitute x in either of 2 equations. कहाँ पे substitute करना चाहिए तो easy रहेगा? x plus y is equal to 0.
x plus y equals to 0 में ज्यादा easy रहेगा. So 1/2 plus y equals to 0. Hence we can say y equals to minus 1/2. So now we have also found the value of y, which is minus 1/2. कौन सा option आएगा? It would be option C. Correct? So first के लिए option आ गया हमारा B is correct. For second, it would be C. चल. Third, if the density will increase, ठीक है, density को increase किया, the speed of sound will be, क्या होना चाहिए? चाइनीज के अलावा पहले कोई और ट्राई करो. आर्य, अंश, भक्ति, देव, कोई बोलो क्या आएगा? डेनियल बराबर है, बुक में लिखते रहो. क्या होना चाहिए? डेंसिटी और उसके बीच में तो रिलेशन पहले क्रिएट करो वापस से. हियर वी कैन से v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k, p रेज टू x मींस 1/2, डेंसिटी रेज टू -1/2. -1/2 मतलब नीचे चला जाएगा. सो इट इज p/d. सो इट इज v is inversely proportional to root d. So when we increase the density, क्या होना चाहिए? velocity should, बोलो जैनी, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इट शुड बी ऑप्शन बी, इट विल डिक्रीज. डन? समझ में आया भाई? धृति, वनित, गर्व, कशिश, खुशी. ओके, चलो अभी सेकंड करते, which is again related to our first chapter, dimensional formula, van der Waals equation. शायद तक तुम्हारा ये केमिस्ट्री में आ गया होगा. आया है van der Waals equation? कोई बात नहीं, चलो. It is P plus A by V square. P here represents for volume into V minus B is equals to RT. T is obviously the temperature. R is molar gas constant. A and B are known as van der Waals constants. What should be the dimensional formula of B? कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B? ये एमसीक्यू में भी हमने पूछा हुआ है. बोलो गर्व, बोलो देव. B का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करेंगे? बोल जैनिल, कैसे करेंगे? सर सेम जो क्वांटिटी सेम डायमेंशन होती है उनको ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो v माइनस b तो b के इक्वल ही होना चाहिए v. करेक्ट. सेम क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है. 2 kg प्लस 2 मीटर नहीं हो सकता. सो ऑब्वियसली वी कैन ऐड दिस quantities with the same dimensions. So when it is written v minus b, obviously it says the dimensional formula of v must be equals to the dimension formula of b. तभी subtract हो सकते हैं. Now for volume we know it is L raised to 3. So m0 L raised to 3 which is equals to here b. अच्छा चलो, नीचे तो सिंपल दिया है, pv के टर्म्स में ही दिया है, तो किसके जितना हो जाएगा? v के जितना. ऑप्शन बी इज करेक्ट, डायरेक्ट. Dimensional formula is same as that for, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ कि P के साथ वी आर एडिंग A plus B by square. So dimensional formula of P pressure must be equals to the dimensional formula of A upon volume square. Therefore we can set the dimensional formula of A must be equals to P into V square. So PV square के बराबर होना चाहिए, which is given in our option C. Option C is correct. हो गया भाई? पहले तो which of the following does not possess the same dimensional formula as that of RT? RT का डायमेंशन फॉर्मूला इसमें से किसके बराबर नहीं है? चलो ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे. Third, here basically the formula is, अगर simply B और A वाले टर्म्स को हटा दो तो PV equals to RT.
तो ऑब्वियसली द डायमेंशन फॉर्मूला पीवी मस्ट बी इक्वल्स टू आरटी, और हमें चेक करना है डज नॉट पोजेस। चलो, तो ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता बिकॉज पीवी और आरटी का सेम डायमेंशन। नेक्स्ट पीबी, तो जब पी और बी करते हैं अपने, तो बेसिकली बी इज नथिंग बट सेम एज दैट ऑफ वी, क्योंकि फर्स्ट में ही देखो यहाँ पे किया हुआ है हमने, डायमेंशन ऑफ बी एंड वी आर सेम, तो टी मल्टीप्लाई बाय बी इज सेम एज पी मल्टीप्लाई बाय वी, तो अगेन दिस बिकम्स आर टी। यस, चलो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सी चेक करो, तो a बाय वी स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल्स टू कितना था, फ्रॉम इक्वेशन टू a बाय वी स्क्वायर वाज इक्वल्स टू p एंड नॉट pv, so obviously a by v square is not equals to rt, but correct option should be option C। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ए बी बाई वी स्क्वायर का भी चेक करना है तो देखो, a has the dimension of that of a by v square has the dimension of p, b has the dimension of v, तो pv हो जाता है which is equals to rt, सिंपल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी अपॉन आर टी क्या बनेगा, ए और बी के डायमेंशन ऑलरेडी फाइंड किए हुए, ए बी अपॉन आर टी, फोर्थ बनाओ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, इट इज इक्वल्स टू पी इंटू बी स्क्वायर, डायमेंशन पीवी फॉर्मूला क्यूब ऑफ बनेगा। क्या, डायमेंशन पीवी फॉर्मूला क्यूब ऑफ नहीं आर टी इज बेसिकली पी इंटू वी, पी पी कैंसल आउट, एक v निकल जाएगा, इट इज सेम एज दैट ऑफ v विच इज इक्वल्स टू m0 l3 t0। कौन सा ऑप्शन लग रहा है इधर, बी। सर मोलार गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट बनाओ उसको। नहीं डायमेंशंस के टर्म में ऐसा एल के टर्म में नहीं होता, L1 M1 में से pv इक्वल्स टू आर टी, तो r इज इक्वल्स टू pv बाई टी, इस तरह से आएगा। pv का अगर मेजर करने जाओगे एक्चुअली में वर्क डन होता है तो 1 2 -2 होगा, डिवाइड बाय टेम्परेचर के लिए अपने केल्विन लेते हैं, तो ये r का डायमेंशन फॉर्मूला 1 2 -2 -1, समझा। यस सर। चलो डन। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स का आ रहा है। Significant figures in the measured value of a physical quantity tells the number of digits in which we have confidence। Significant figure और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, रूल्स है, तुम लोगों को सबको पता ही है, याद है ना। जो नॉन जीरो नंबर्स है वो सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, zeros between two non-zero are significant, zeros in a decimal less number are non-significant। ये सारे जो इतने भी है, एक बार बुक में भी रीड करना है तो देख लो, वही सारे रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। लंबा सा पैराग्राफ दिया है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादा नंबर का कॉन्फिडेंस है हमारे पास। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखो ये मेन जो यहाँ पे नीचे एमसीक्यूज में हेल्प होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जिसका भी स्मॉलेस्ट होगा वही आंसर में आएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे 1.2 plus 2.45 if I want to add, then our answer should be एक्चुअल में होना चाहिए 3.65, बट आंसर क्या आएगा 3.6, या तो एवरेज आउट कर दो तो 3.7। सो बेसिकली डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में भी कितने दिखने चाहिए, सिंगल डिजिट। सो दिस इज द रूल रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट अस मूव टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्या दिया है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखो रूल, in multiplication and division number of significance in the product or in the quotient is same as that's the smallest number of significant figures। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, सबसे कम जो भी होंगे वो हम इसमें गिनेंगे। ओके भक्ति,
देव, समझ में आया? क्या करना हाँ, है, सर। जैसे 1.2 इंटू 24300, तो जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? तो आंसर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट सर, उसके आगे के सारे, क्योंकि इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए। दैट इज द रूल रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सिंपल सा इतना याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में विल टेक केयर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में विल टेक केयर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो, with the help of above comprehension choose the most appropriate alternative. Subtract, क्या subtract करना है मुझे? 2.64 from 3.9 into 10⁵. चलो करो। First 3.9 into 10⁵ minus 2.6 into 10⁴. सबसे पहले subtract करना हो तो ये जो पावर है वो सेम लाना पड़ेगा। So this can be again written as 39 into 10⁴ में लिख सकता हूँ, minus 2.6 into 10⁴. अब क्योंकि दोनों का पावर सेम है, into 10⁴ अलग कर दो। 39 minus 2.6 would be somewhere around कितना आएगा? 36.4, 36.4 और 3.6 into 10⁵. which is equals to 3.64 into 10⁵. पर वापस से because we are adding, तो देखो यहाँ पे डेसिमल के प्लस दोनों में कितने थे? 1 है, इसके पास भी 1 है, तो फाइनल आंसर में भी कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। So this will be in terms of significant figure 3.6 into 10⁵. ऑप्शन अच्छा सी पहले दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 3.6 into 10⁵ is our correct answer. The area enclosed by the diameter, circle of diameter 1.06 with the correct number of significant figures is, diameter d दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर. R square can be written as d by 2 whole square. So we can say it is pi d square divided by 4. Pi by 4 को निकाल दो. Basically we are interested in d square. So 3.14 divided by 4 into d कितना है? 1.06 whole square. Okay. We'll take the use of calculators. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पहले कर देते। आंसर मुझे मिल रहा है कुछ इस तरह से 0.8820। चलो, अब करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे आंसर चाहिए, तो पहले मैं चेक करूंगा कितने हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? आर्या कितने आएंगे? अंश बोलो भाई, 1.06 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? 3 3 होते हैं। परफेक्ट, तो फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तो इट वुड बी 0.882। ठीक है, 2026 ये एक्चुअल में परफेक्ट आंसर है, और 3 होने चाहिए, तो 3 वाला कौन सा आंसर बन रहा है? वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, कोई बात नहीं, 3 तक वही आंसर जो है मैच कर रहा है, तो इसको अपने टिक करेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ के लिए 5 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, नहीं है इधर। डन। सेम चीज, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 1.06। अभी एरिया तो फाइंड कर लिया, सर्कमफरेंस भी पूछा है। सर्कमफरेंस इज 2 pi into r, या we can say it is pi into d direct. तो 3.14 into 1.06, answer that we are getting is 3.3284.
अभी करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या होगा, कौन सा आंसर आएगा? कितने यहाँ पे 3, फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? 3। 3। ऑप्शन ए करेक्ट, बराबर। डन भाई। सो सिंपल सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पे केस स्टडी था। रूल ऑलरेडी दिया हुआ है, कई बार हो सकता है कि ना भी दिया हुआ ये रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, सिर्फ इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन देके क्वेश्चंस दे दिए हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? याद क्या रखना है? दक्ष, धृति, हेत, कशिश, कृष्णा, माही, क्या याद रखेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन में विल सी द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, whichever is less must be our answer. In multiplication division will take care of number of total significant figure, जिसके सबसे कम significant figure है वो इतने अपने आंसर में रखेंगे। चलो चैप्टर 1 बहुत हो गया, मूविंग टू चैप्टर 2, मोशन इन 1D। x is equals to 2t and y is equals to 5 sin 2t. x and y both are given, so basically this is motion in 2 dimension. इसका सम हो गया क्योंकि x और y दोनों दिए हुए। चलो सबसे पहले क्या पूछा हुआ है? x is equals to 2t and y equals to 5 sin 2t. The magnitude of acceleration all the times would be, तो एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट हम वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। कैसे मिलेगा? इट वुड बी इक्वल्स टू dx by dt। डिफरेंशिएट करो इसको, 2 इज कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? बोलो भाई। 1 होगा, t raised to 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो 2 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी आवर vx। vy, चलो आगे एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है तो ax भी साथ में कर ही लो, तो इट वुड बी d इंटू vx बाई dt। डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। vy 5 कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को शायद ना याद हो, साइन का होता है cos, और जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं, आएगा धीरे धीरे। सिंपल सा अगर तुमको याद रखना हो तो यहाँ पे रख सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया x कंपोनेंट के लिए वो था n x रेज टू n माइनस 1, जो भी पावर है उसको कोएफिशिएंट बना दो एंड डिक्रीज द पावर बाय 1। जो फॉर्मूला हम सेकंड में यूज कर रहे हैं दैट इज दिस के साइन ax का डिफरेंशिएशन होता है a टाइम्स ऑफ cos ax। वैसे ही अगर cos का पूछा हो, d बाई डी एक्स ऑफ cos ax, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो माइनस ए साइन ax। ठीक है, चलो सो vy is tan cos 2t, again we have to find ay, it will be the differentiation of velocity dv by dt, tan constant है, cos 2t ऊपर का फॉर्मूला यूज करो, it should be minus 2 sin 2t, which is equals to basically minus 20 sin 2t। and if you can observe 5 sin 2t को अलग ले लो तो it is basically minus 4y। चलो ax is 0, ay is minus 4y, ये दोनों इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है? फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा? एट ऑल टाइम्स वुड बी, जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल टू y, a इज इक्वल टू 0 है एंड ये प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा? अंश, देव, सी। क्या होना चाहिए? सी।
डी ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ y कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, x कंपोनेंट में तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। चलो नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो हमारे पास देखो ये है vx है विच इज टू vy है विच इज 10 cos 2t। तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू ले लो। तो वेलोसिटी इन सेकेंड केस वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx square plus vy square which is equals to under root 2 square that is 4 and 10 square that is 100. So root 104 this should be our answer. कहाँ पे है root 104? तो ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या आएगा आंसर? 2 को अंदर ले जाओ तो 4 हो जाता है। हाँ, 2 root option C, 26. 2 root 26 Sir, matches with the સર by 10 કઈ રીતે થઈ ગયું? શું કહે છે? by 10 by cos 10 2t કેમ હતું તો એમાં 100 આપણે 10 કેમ assume કર્યું? એનો એમ્પ્લિટ્યુડ શું છે? કોએફિશિયન્ટ શું છે? 10 cos ની મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી હોય? cos 1 1. તો 10 into 1 શું થાય મેક્સિમમ વેલ્યુ એની? ખબર પડી? ઓકે ઓકે અને અહીંયા પૂછ્યું જ છે મેક્સિમમ સ્પીડ, એટલે બંનેનો મેક્સિમમ વેલ્યુ લઈ અને પછી આ આપણો વેક્ટર વાળો રૂલ યુઝ કરવાનો। બરાબર? ડન? डन 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 ओके चलो थर्ड वाला जो नहीं आया समझ में आएगा तुम लोगों को। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, पार्ट बी वाला ही हुआ ना, क्योंकि पार्ट डिक्रीज थोड़ी हो सकता है। हाँ पाथ डिक्रीज नहीं हो सकता है। डिक्रीज नहीं हो सकता मतलब ना ना, वो एक्चुअली मेरे को स्पीड टाइम लगा इसलिए वेलोसिटी है तो हो सकता है। नहीं। ग्राफ देखो किसके बीच में? y और x के बीच में। y वर्सेस x का ग्राफ है। ठीक है, तो y वर्सेस x में देखो y में कौन सा है? साइन कर्व आ रहा है। x में कौन सा है? 2t आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि y साइन कर्व फॉलो कर रहा है, हमारा जो आंसर है उसमें भी साइन कर्व फॉलो होना चाहिए। इसमें से कहीं पे है साइन कर्व फॉलो हो रहा है? ये तो नहीं हो सकता। साइन कर्व अगर तुम लोगों को पता हो, ट्री को अगर हो गया होगा तो उसका ग्राफ आएगा दिस इज समथिंग अ साइन कर्व, तो ऑप्शन डी आएगा। ये कॉस का कर्व है, ये साइन का कर्व है, दिस इज द कर्व फॉर साइन स्क्वायर, तो ये भी नहीं आएगा। एंड दिस इज द कर्व फॉर स्ट्रेट लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जैसा कर्व है। ठीक है, आगे और एक सम है जहाँ पे अपने ग्राफ भी प्लॉट करेंगे कि कैसा ग्राफ बनते हैं रिलेशन से y और x के बीच में। पाथ ऑफ द पार्टिकल इस इसमें दिया है ना, बस इसमें करेंगे अपने। चलो नेक्स्ट केस स्टडी देखो क्या दिया है। x and y coordinates of the particle, again motion in 2D। So x and y of the particle moving in the xy plane at some instant are given. X is equals to, it is given 2t, and y is equals to, it is given 4t। x equals to 2t, y equals to 4t। x and y are in meters and t is in second। The distance traveled by the particle from time t equals to 0 to 2 seconds। कैसे फाइंड करेंगे? बोलो 0 to 2 के बीच में कितना ट्रायल हुआ सर t को साइमल्टेनियसली 0 ने- to 2 दोनों में x y में t equals to 2 અને t is equals to 0 પુટ કરી Yes. ડિફરન્સ બંને આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું। ફર્સ્ટ વિલ સબસ્ટિટ્યુટ t equals to 0 and then we will substitute t equals to 2। So here delta x we get is equals to 4। Similarly here y position at time t equals to 0 was 0। Y position at time 2 was equals to 4 2s are 8। Hence delta y becomes equals to 8। Combining these two, now we can say the displacement of the particle, which should be equals to d
एक्स और वाई दोनों का वेक्टर कंपोनेंट के हिसाब से अपने जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इट शुड बी अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू रूट 80। दिया है कहीं पे रूट 80, 80 नहीं, 3 रूट 40 नहीं सर होगा, ऐड 2 कैसे रूट किया? 3, 4 रूट 5, 4 रूट 5 हो सकता है। ऑप्शन बी 16 फाइजा, क्योंकि 16 को कॉमन ले लो, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 5, रूट ऑफ 16 बिकम्स 4, बिकम्स रूट 4 रूट 5। हाँ जैनी, क्या पूछ रहा था तू? ये ऐड कैसे किया वो नहीं समझ आया। ऐड नहीं किया मैंने, पहले तो ये डेल्टा एक्स फाइंड किया, 0 to 2 में हाँ एक्स डायरेक्शन में वो कितना समझ गया। गया, तो वो 4 मीटर गया। 0 to 2 में वाई डायरेक्शन में कितना गया, तो 8 मीटर गया। ठीक है, अब मेरे पास एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट 4 है और वाई कंपोनेंट 8 है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? हाँ ओके यस। चलो, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, मतलब वाई और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो वाई और एक्स का रेशियो ले लो यहाँ पे, तो 40 अपॉन 2t becomes equals to 2, so y equals to 2x, दोनों में रिलेशन 1 है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। यस, अब ये कैसे समझना है, तो बुक में लिखना है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रू आउट 11th एंड 12th तुमको काम में आएगा कि कौन से इक्वेशन से कौन सा ग्राफ बनेगा, स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स। मैथ्स वालों को तो भी धीरे धीरे इक्वेशंस आएंगे तो तुम समझते जाओगे। इक्वेशन मतलब कि यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेशन between x and y and corresponding graph y equals to mx plus c is the equation of straight line। इसमें आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब y का और x का पावर 1 होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा। ठीक है, देन y is proportional to x square, कुछ भी हो सकता है, फिर ax square plus bx plus c क्वाड्रेटिक फॉर्म या कुछ भी। प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हारा हो गया तो उसमें भी आया होगा, आया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा कुछ इक्वेशन बना होगा। तो जब y का पावर 1 हो, x का पावर 2 हो, तो ग्राफ वुड बी जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का पैराबोलिक। व्हेन y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, दोनों का पावर जब 2 होता है तो ग्राफ शुड बी आइदर सर्कल और एलिप्स। 99% केस में सर्कल ही होता है। एलिप्स कब होगा, जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशंस याद रखो। हाँ, और एक भी आना चाहिए कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, और वी कैन से व्हेन xy इक्वल्स टू कांस्टेंट। व्हेन xy इक्वल्स टू कांस्टेंट द ग्राफ शुड बी हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कैसा होता है, तो अगर केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ हुआ है तो हाइपरबोलिक याद होगा, इस तरह से ग्राफ P is inversely proportional to V या PV equals to constant. Boyle's law is an example of hyperbolic graph. ठीक है, डन भाई। दक्ष, धृति, देव, गर्भ, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो, इंटरेस्टिंग है। ग्राफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कर सकते हो, कंसेप्चुअल है ये पूरा केस स्टडी, है वो ज्यादा फॉर्मूलास नहीं है। ठीक है भाई, इजीली रीडेबल है अभी। चलो, तो क्वेश्चन के बीच में भी जगह छोड़ दो। डन, ग्राफ देख पा रहे हो अभी
क्लियर? ओके, चलो. The graph given shows the position of two cars A and B as a function of time. Position versus time, x versus t का ग्राफ है जो यहाँ पे दिख भी रहा है. The cars move along the x-axis on the parallel but separate tracks. दो ट्रैक है, दोनों ट्रैक के पैरेलल, दो अलग अलग ट्रैक पे चल रहा है, so that they can pass each other's position without colliding. तो एक दूसरे को ओवरटेक करेगा तो अलग अलग ट्रैक है इसलिए कोलाइड नहीं होंगे. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. At which instant car A overtakes B? जो पोजीशन से समझ में आ रहा है अपने को. A B को कब ओवरटेक करेगा? हाँ, T3 पे. कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है वो A का है, दिस ग्राफ इज फॉर B. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे A B से आगे निकल रहा है. कौन से टाइम पे? इट इज T1. तो फर्स्ट का आंसर होना चाहिए T1. ऑप्शन ए. जयनील समझा? सर टाइम इंटरवल T3 पे भी तो आ गई. क्या टाइम इंटरवल T3 पे भी तो क्रॉस हो रहा है. क्रॉस हो रहा है पर पोजीशन तब उसकी नीचे जा रही है, A की, B की ऊपर जा रही है. तो T3 जो है वो पॉइंट वैसा आएगा व्हेन B ओवरटेक्स है. समझा? यस. हाँ हाँ. चलो, सिंपल सा कंसेप्ट है ये, पहले से ही आगे से शुरू कर रहा है. समझ लो कि यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आ गया x = 4, मतलब दोनों अभी सेम डिस्टेंस पे है ओरिजिन से. पर जैसे ही a बढ़ गया, मतलब T1 के बाद a सपोज 6 पे चला गया, b अभी भी 5 पे ही है, तो a आगे निकल गया ना, a ने ओवरटेक कर लिया पोजीशन वाइज. चलो डन. फर्स्ट का आंसर. एट विच, अच्छा, एट टाइम T3 विच कार इज मूविंग फास्टर? पॉइंट T3 कौन फास्ट मूव कर रहा है? ए बी B. सॉरी बी देखो यहाँ पे आगे निकल रहा है, ए स्लो हो रहा है. ठीक है, सो विच वन इज मूविंग फास्टर? बी. अब कैसे डिसाइड करने का विच इज मूविंग फास्टर? तो स्लोप देखेंगे. तो स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ. So for B, it is greater than the graph slope of x versus t for A. देखो B का इस तरह से हो रहा है, तो B का ऐसे निकल रहा है, A का वैसे निकल रहा है, सिंपल सा इतना सा. तो किसका स्लोप बड़ा हुआ? ऑब्वियसली B का ज्यादा हुआ स्लोप. So because the slope of B is greater, we can say B is moving faster. Done. कोई डाउट इसमें? समझे भाई? Yes, sir. Perfect. Third सोचो. At which instant do the two cars have same velocity? अब वेलोसिटी कैसे मिलेगी? स्लोप निकालते. स्लोप निकालेंगे. स्लोप, जब दोनों का स्लोप सेम हो गया या दोनों का स्लोप पैरेलल हो जाएगा, वो पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी. बिकॉज इन x वर्सेस t, if you remember, in the graph of x versus t, slope implies velocity. Okay, तो पॉइंट अभी यहाँ पे तो देखो अलग ही कुछ जा रहा है, पर ये पॉइंट पे देखो ये टेंजेंट और ये दोनों पैरेलल आ रहा है. So for T2 we can say slope of A and B are similar, same. So at T2 both are having the same velocity. समझ में आया क्या लॉजिक लगाया अपने ने? T2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, that tangent is parallel to the slope of B also. So velocity of A and B would be same. समझ में आया कंसेप्ट? क्योंकि दोनों पैरेलल है. स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर A एंड स्लोप ऑफ x वर्सेस t फॉर B, जो तो कांस्टेंट है B के लिए, तो सेम वेलोसिटी से हो जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से. दोनों का स्लोप सेम हो गया तो वेलोसिटी सेम हो गई. समझ में आया भाई कंसेप्ट? जयनील
Yes, sir. चलो लास्ट वाला सोचो कौन सा आएगा। मोशन से क्या पता चलता ए के लिए? बी का तो B, सिंपल सा समझ में आ रहा है, last कांस्टेंट वाला। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, एक्स वर्सेस टी। एक बार एग्जाम के बीच में भी हमने किया था कि ऐसा हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और जब कर्व ग्राफ हो तो वेलोसिटी भी होता है विच इज नॉट कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब क्या बता सकते हैं इसके बारे में? ए का ग्राफ को देखो, First speeding up, then slowing down. इस तरह से कुछ जा रहा है क्या? ऑप्शन फर्स्ट डी आएगा स्पीडिंग ना, अप, पहले हाँ स्पीड सही बात है, फर्स्ट स्पीडिंग अप तभी वो बी को ओवरटेक करेगा, बट देन वापस से बी उसको ओवरटेक कर पा रहा है, मतलब वापस से क्या कर रहा है वो स्लोइंग डाउन। ओके, ऑप्शन डी। स्पीडिंग अप होता कंटिन्यूसली आगे होता है, तो जब ए ने बी को ओवरटेक करा तो फिर उसके बाद बी को चांस नहीं मिलता ओवरटेक करने के लिए वापस। ये स्लो हुआ उसके बाद ही बी को वापस से चांस मिला के बी को वापस से पीछे कर दो। डन भाई, समझ में आया? चलो नेक्स्ट अपना चलते, दूसरा एक वैसे ही कुछ सिमिलर है। चलो, position of a particle is given by, here the formula is x is equals to 2 into t minus t square, where t is expressed in second, x is in meter. The acceleration of the particle would be, क्या करेंगे acceleration के लिए? When we are given the formula for displacement, acceleration can be, first we have to find velocity and then we can find the acceleration. For velocity we have to do dx by dt. इसको एक्सपांड करना पड़ेगा पूरा। एक्सपांड क्यों करना है, पहले नॉर्मली करो डिफरेंशिएट। t का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 1 हो जाएगा। t स्क्वायर का कितना होगा? 2t हो जाएगा। सो दिस बिकम्स आवर वेलोसिटी। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन वुड बी dv by dt। वापस से डिफरेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट, 1 का 0 हो जाएगा, -2t -2 हो जाएगा। तो आंसर वुड बी -4। यहाँ पे 4 वाले 2 है, टी में गैप दिख रहा है, एक -4 होना चाहिए। विल गो विथ ऑप्शन बी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट? खुशी, देव, भक्ति? Yes, sir. Okay, perfect. Next question says the particle, in relation to the particle's motion, it never goes to the negative y-axis, it never goes to the positive x-axis, or it starts from the origin, goes up to x is equals to 1/2 meter in positive x-axis and then moves in the opposite direction and has the zero initial velocity. चलो, zero initial velocity पहले चेक कर लेते हैं, which is easy to check. क्या आगे? इनिशियल वेलोसिटी मतलब के टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या है? तो वी हैव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, दिस वन। तो उसमें 0 पे डालो तो 2 कांस्टेंट, 1 - 2 × 0 हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, इट इज नॉट 0। तो ऑप्शन डी इज फॉल्स। नेवर गोज टू नेगेटिव x एक्सिस एंड नेवर गोज टू पॉजिटिव x एक्सिस इज डिफिकल्ट टू से। सी चेक कर सकते हैं, starts from origin and goes up to x is equals to 1/2 in the positive x-axis and then moves in the opposite direction। हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए उसकी वेलोसिटी पहले 0 होनी चाहिए।
वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ 2 into 1 minus 2t must be equals to 0. 1 minus 2t equals to 0 और t equals to 1/2. तो t equals to 1/2 पे क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है. वो पॉइंट के बाद नेगेटिव होगा वेलोसिटी, ठीक है, तो रिवर्स करेगा. पर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर दिया है, तो x पे t 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2 into 1/2 minus 1/4 becomes 2 into 1/4 which is equals to 1/2. बात तो सही है. x इज इक्वल्स टू 1/2 पे वेलोसिटी मेरा 0 हो रहा है, सो x इज इक्वल्स टू 1/2 तक वो सीधा सीधा जाएगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में. x इज इक्वल्स टू 0 से शुरू किया, x इज इक्वल्स टू 1/2 तक गया, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी 2, वहां पे वेलोसिटी हो गई 0, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहां से रिटर्न करेगा, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है. सो ऑप्शन सी इज लॉजिकल. समझ में आया भाई कि x इज इक्वल्स टू 1/2 पे सर ऑप्शन सीधा सी का नहीं समझ आ रहा. हाँ, चेक क्या करना है हमें, वर्टिकली अपवर्ड मोशन. देखो कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वापस से नीचे कब आता है, उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, और फिर वहां से नीचे आता है. सही बात है, ये समझ में आया. हाँ सर. हाँ, तो कोई भी पार्टिकल मोशन अपना रिवर्स कब करेगा, जब उसका वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा तो रिवर्स करेगा. इतना सिंपल लॉजिक है, बराबर. अब पहले हम टाइम फाइंड करते हैं कि भाई वेलोसिटी एक्चुअल में 0 कब होती है, तो वो टाइम हमने फाइंड कर लिया, ये वाला, कि वेलोसिटी बिकम 0 at t equals to 1/2 seconds. क्लियर. अब 1/2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या था, कहाँ पहुंचा था वो, तो t के बदले 1/2 सब्स्टिट्यूट करो ये इक्वेशन में, तो 1/2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी x इक्वल्स टू भी क्या मिल रहा है, 1/2. समझा, मतलब सीधा सीधा वो गया 1/2 तक, 1/2 से वो रिवर्स हो गया. हाँ, ओके. अगला लॉजिक. लॉजिक तो अगरा क्या है, उसमें ऊपर उछाल के देख, कोई भी चीज समझ में आ जाएगी. तूने कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, ये x के बदले y ले लो, ऊपर कोई चीज को अपने फेंक रहे, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा हमारे पास, वो चीज ऊपर जाएगी. बिकॉज ऑफ हाउ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से वो रिवर्स हो जाएगी. हाँ वो चीज है. हाँ बस, तो जैसा y डायरेक्शन होता है वैसे x डायरेक्शन में भी हो सकता है. ओके, चल. The total distance traveled by the particle between t equals to 0 to t equals to 1 second. क्या करेंगे, ये तो सिंपल आना चाहिए. क्या होगा, x का पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, t equals to x is equals to 2 into t minus t square. At x is t equals to 0, 0 minus 0, आंसर हो जाएगा 0. At x is equals to 1 second, 2 into 1 minus 1 square भी कितना होता है, 0 हो रहा है. The total distance traveled by the particle between t equals to 0 to 1 is 0 only. ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है. ठीक है, समझ में आया. एक्चुअली थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों को देखें तो अलग अलग हो जाएगा. पाथ लेंथ वुड बी 1 मीटर, क्योंकि वो x इक्वल्स टू 1/2 पे जा रहा है और वापस से आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 मीटर. ओके, डन. और वेक्टर टर्म्स में देखो तो इट शुड बी 0. Yes. चलो, फिफ्टी 53 हुआ है, और कोई एक ले लेते हैं अपने. प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं आया ना, बिना प्रोजेक्टाइल के कैसे चलेगा, उसको आना चाहिए. आना ही चाहिए. प्रोजेक्टाइल तो इम्पोर्टेंट है.
ये आ गया प्रोजेक्टाइल। चलो बारी बारी आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं। फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत लंबा थियरी दिया है, कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत ऐसा नहीं है अगर तुमको आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, जैसा नीचे दिखाया गया है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राजेक्टरी, जो पैराबोलिक होती है। While resolving the initial velocity vector u into two component, we'll get two components, एक x component मिलेगा u cos theta और एक y component मिलेगा u sin theta। इतना थियरी क्वेश्चन में दिया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही इसके एग्जांपल क्या होगा, तो चार ऑप्शंस दिए, उसमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल बन सकता है? मोशन ऑफ, बोलो बोलो। जैवलिन थ्रो वाला। कहा पहले ये कट कर दो। मोशन ऑफ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अभी आपने देखा वर्टिकली अपवर्ड होता है तो ऊपर जाता है, वहीं से वापस से नीचे आता है, उसका कोई ऐसा कर्व पाथ नहीं बनता है, तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। मोशन ऑफ बोट इन सी, ऑब्वियसली नहीं, वेव्स की तरह जाएगा वो तो। मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, वो तो सर्कुलर मोशन हो गया, ये भी नहीं। सी देखो, जेवलिन थ्रो बाय एथलीट, अपना नीरज चोपड़ा, देखा होगा तुमने, फेंकता है तो कैसे जाता है, गेम भी पहले आता था ऐसे, ये डायरेक्शन में ऐसे फेंको, ऐसे जाके गिरे। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट। चलो बाकी के क्वेश्चंस देखो अभी। अरे बैंक रोड क्या होता है? बैंक्ड मतलब के कर्व्ड रोड, टर्निंग आ गया तो उसको बोलते हैं बैंक्ड रोड। और बैंक मतलब अगर टर्निंग भी कैसा, अगर हाईवेज पे तुमने ऑब्जर्व किया हो, डिवाइडर से थोड़ा जो होता है रोड, बाहर की साइड थोड़ा ऊंचा होता है, हाइट उसकी बाहर की साइड ज्यादा होती है, डिवाइडर की साइड कम होती है रोड की। इस तरह का बैंकिंग होता है, ब्रिज वाला बैंकिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ से ऐसे डिवाइडर जा रहा है तो उससे ऊपर होगा रोड, इस तरह से होगा और ऐसे कर्व लेगा, बाहर की साइड हमेशा ऊपर होता है। क्यों ऊपर होता है उसका रीजन तुमको पता चलेगा चैप्टर 4 में, लॉस ऑफ मोशन में। क्योंकि हाईवेज में ज्यादा स्पीड होती है तो ज्यादा स्पीड पे कार या व्हीकल स्किड ना हो जाए, वो उसके लिए बैंकिंग रहता फ्रिक्शन है, कम होता है इसलिए। फ्रिक्शन तो नहीं, फ्रिक्शन तो वही वही रहता है, फ्रिक्शन एक्चुअली में बढ़ता है। नहीं, टायर घिस गया हो तो। हाँ तो फ्रिक्शन एक्चुअली बढ़ता है, और फ्रिक्शन बढ़ता है इसलिए वो स्कीड होने से रोकता है, तो एंगल इसलिए बढ़ा रखते हैं। तुमने अगर वो डेथ वेल भी देखा हो कभी कभी, वो जो पुराना ये सर्कस वर्कस में आते थे तो उसमें दिखाते, वो भी अगर तुमने ना देखा हो तो कार रेसिंग जो आते थे, कार रेसिंग में भी ऐसा होता है, बैंक किया होता है थोड़ा कर्व, ठीक है। ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा बेसिकली बैंकिंग क्या है। डिवाइडर के साइड नीचे होता है रोड, बाहर की साइड ऊपर होता है। अगर तुम ये वाले रोड पे जाओ, अपना गुजरात में जो महसाना वाला जो रोड है, कलोल के साइड मैक्सिमम ये तुमको बेंडिंग मिलेगी, महसाना से ऊंझा वाले रोड पे भी तुमको मैक्सिमम बैंकिंग मिलेगा। टर्निंग पे अब नेक्स्ट टाइम वो हाईवे से निकलो तो ऑब्जर्व करो, जो साइड तुम टर्न ले रहे हो वो साइड थोड़ा बैंक होता है, ऊपर के साइड किया होता है, स्किड ना हो जाए इसलिए। चलो एनीवेज अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो भाई। इतना सिंपल है, ये तो डायग्राम भी दिया हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन in x direction it goes with the constant velocity, in the y direction its initial velocity is u sin Zero. theta and acceleration equals to Sir, minus zero. g। जीरो, यस देखो एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो। परफेक्ट। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट h मतलब ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, देखो डायग्राम में भी दिया है, मैक्सिमम
क्या मैक्सिमम भाई? 0। 0 होता है अगर एच अच्छा डायरेक्शन हाँ में सॉरी, वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे। हाँ हाँ, वही कंसेप्ट। वहां पे मैक्सिमम नहीं हो सकता, वहां पे 0 होगा तभी तो वहां से वो नीचे आना शुरू होगा। देखो ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी 0 हो गया वाई डायरेक्शन में, तो वापस अब वाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा है। समझ में आया? तो हियर द वाई कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ऑप्शन बी। भक्ति देव कहो बड़ी भाई। हाँ सर। चलो सर लास्ट 2 क्वेश्चन भाई। कैलकुलेशंस, बिना कैलकुलेशन के प्रोजेक्टाइल भी मजा नहीं आएगा। तो क्रिकेट बॉल थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ, मतलब जैसा हमको इक्वेशन दिया है उस हिसाब से द वैल्यू ऑफ u इज गिवन 28 in a direction of 30 degree, so angle theta is given. With the horizontal, the time taken by ball to return to the same level will be, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला यूज होगा। yes, वापस से देखो जहां से शुरू करता है, जहां से शुरू करता है वहीं पे वापस आता है। तो वो जो टोटल टाइम लगता है दैट टाइम इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन बताओ मुझे, क्या होता है? TF इज इक्वल्स टू, बोलो सब निकल गया टेक्स्ट बुक में। तो देखो भाई 2u sin थीटा अपॉन g, ये होना चाहिए। नहीं याद है तो इतना डिराइव करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। y डायरेक्शन में vy इज इक्वल्स टू v0y प्लस ct इक्वेशन लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस g t है, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज u sin थीटा बाई g। जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है उतना नीचे आने के लिए तो डबल हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 28 इंटू जी साइन 9.8 लेना कि 10? 30/2। क्या बोल रहे हो? जी 9.10 ले लो, लिखा नहीं है कहीं पे, थोड़ा इजी बना देते क्यों कैलकुलेशन में। 2.8 बाय 10 मतलब 2.8 होगा ना जितना 2.8। अगर 9.8 लेंगे 2.8 तो थोड़ा बढ़ेगा, मतलब 2.9 जितना हो सकता है नियरेस्ट वैल्यू। In the above case, the distance from the thrower or to the point where the ball returns. क्या पूछा ये? रेंज। Distance from the thrower, यहाँ से थ्रो किया था, to the point where it returns, मतलब ये distance पूछा है, so the range is asked. So range of the projectile would be, फॉर्मूला बताओ जैनिल, बोलो फॉर्मूला। R is equal to √2 g। 5 बार लिखने के बाद भी याद नहीं है। सर दो स्क्वायर बार साइन, क्या 2 बार लिखा ना सीबीएसई वाले ने। इसलिए याद नहीं है ना, मैं सर को बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम 5 बार लिखते। u square sin 2 theta by g, so u becomes equals to 28 square into sin 2 times of 30 becomes 60 divide by 10 ले लो, तो 28 का स्क्वायर sin 60 becomes √3/2। तो वो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना है। 14 into 28 into √3 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 1.71। सर 28 into 14 392 आ रहा है, √3 का आसपास ही होगा। उसका डबल करने का ना फिर 1.71। ओके, एक्चुअली में आंसर आना चाहिए 672 पॉइंट समथिंग। 68 आ रहा है, मींस डेसिमल हटा के फिर। u square sin 2 theta by g अपना भी रास्ता भी परफेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली
आंसर कैलकुलेटर से देखेंगे तो इट कम्स अराउंड 670.32। ठीक है, 680 आ रहा है सर। 9.8 लेंगे तो कितना आ रहा है? 680 आ रहा है। हाँ, ओके, 680.5 आ रहा है। 680.5, ठीक है। मतलब 68 एक्चुअली में एक जीरो यहाँ पे निकल गया लग रहा है। 680 शुड बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन तो पूछा से ना, સ્કીપ નહીં કરી શકો તમે। ડેરિવેશન થી લઈને ન્યુમેરિકલ્સ ત્રણેય ચેપ્ટરમાં જો સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન છે, એટલે કરો। આ રીતના ઇગ્નોર ના કરશો, ફોર્મ્યુલાસ તો યાદ હોવા જોઈએ एटलीस्ट આપણને। चलो एनीवेज, स्टार्टिंग देखो अपन ने किया था यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला का एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन। फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला देखा कि डायमेंशन के साथ वही वैल्यूज ऐड, सेम डायमेंशन वाली वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले लॉ याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में वी टेक केयर ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर मोशन वाले आए, एक्स और वाई डायरेक्शन में इंडिविजुअली ट्रीट करो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये भी मोशन इन 1D 2D वाला था, ये ग्राफ से जज करने वाला था। एक्स वर्सेस टी में हमेशा याद रखना चाहिए स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वी वर्सेस टी में सिमिलरली स्लोप विल बिकम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड एरिया विल बिकम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी ग्राफ वाले याद रखना, केस स्टडीज उस पे आ सकते हैं। ये अपना वापस से मोशन वाला जिसमें डिफरेंशिएशन किया था अपने ने, और फाइनल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। डन, वापस से ये तुमको भेज देंगे पीडीएफ, थोड़ा प्रैक्टिस करना। कहीं और से भी तुमको केस